Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, Sital ma'am, Gaurav sir, and Rajiv sir. Good evening, sir. Am I audible clearly? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. Let's then proceed with the current revision, which is up to section Sir, 59 in Patent Act yeah, and up before, to sir. section Design Act में कितना है मैडम? Sir, सिर्फ 1920. और 20. 19 and 20. The 19 one. Section keyword, form, fees, timeline, and rule applicable. Begin with ma'am. Section number 54 talks about Patent of addition. patent of addition. Is there any form Yes. specific that define patent of addition? Form 1, 800 rupees. Very good. 50% less amount has to be paid in order to file patent of addition application. Yes, sir. Any timeline associated with patent of addition? No. Anytime Yes. before grant, after grant, kabhi bhi. But after filing, at least on or after filing of main application, you can file patent of addition. Yes, sir. Okay. What about grant of patent of addition? सर उसके अलग से ग्रांट होती है. But when? After the main patent grant होने के बाद. On or after grant of main patent. Yes, sir. Okay. So that's the main timeline. On or after filing of main application. Is there any rule associated with it? Sir, rule 80 as such नहीं. As such है. 80. 80 नहीं है. क्या है 81 के साथ? एक मिनट. सर 81 नहीं है सर. 81 तो Let me check. 80 ही होगा आपने कहा है तो. नहीं सर. Let's confirm it. सर 81 तो नहीं है. 81 is for this one. Amendment of Amendment. Yes, ma'am. So there is no such rule specific for patent of addition. Yes. Okay. So when we file patent of addition, take reference of the main application into it. Yes. Do we have to mention reference? Yes, we have to mention. Yes, sir. Okay. So that's it. And what about section number 55? It talks about a term of patent of addition, sir. Okay. What is the term of patent of addition? Sir, term of patent of addition starts from the priority date of the main patent. Perfect. अगर revocation होगा
then patent will become the independent patent, but even then the priority date will be of the main patent. Perfect. So when the main patent exists, Huh. it is not revoked. During that period, see, the terms is for the purpose to pay renewal fees, Yes. correct? So do we need to pay renewal fees for the patent of addition? No, no renewal fees per patent of addition When the main patent exists. exists. When the main patent revoked, do we need to request to make patent of addition as an independent patent? Yes, we can request to be independent patent, requesting in form number 30, 2,400 rupees. On Very request, good. patent of addition can become independent patent, and after that renewal fees will be payable according to the. Perfect, man. Perfect. So here form number 30 and 2,400 rupees will come into यहाँ पे भी picture. कोई rule नहीं है sir. In order to make the patent of addition as an independent patent after revocation of the main application. Yes sir. So timeline is here after revocation of main application. Yes sir. Section number 56 talks about Validity of patent of addition sir. validity. The validity of the patent of addition can't be questioned upon. Can't be questioned upon two things: innovation and industrial ability. अगर inventive step है तो question करेंगे. नहीं, wrong बोला सर मैंने. हाँ, exactly opposite to that. It can't be questioned by. Refused, revoked, and invalidated. Invalidated, okay. Can't be refused, revoked, and invalidated. But On the basis of that, the patent of addition does not contain inventive step. inventive step, yeah. So patent of addition. So your voice is breaking, sir. है ना, सर का वॉइस ब्रेक हो Any रहा doubt? है. सर आपका हाँ, वॉइस break हो रहा ब्रेक हो रहा था सर. आपने Just मुझे नहीं. 1 minute. One minute, man. अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर. यस सर. Okay. फिर मुझे लगा कि मेरा नेटवर्क गया. राजीव सर, यही है ना कि अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है तो इट कैन नॉट बी रेफ्यूज्ड, इनवैलिडेट एंड रिवोक्ड. यस यस, करेक्ट. मतलब पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए हमें इन्वेंटिव स्टेप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओनली इनोवेशन और इंडस्ट्रियल एबिलिटी होना चाहिए. करेक्ट. जरूरी है. पेटेंट ऑफ एडिशन बेसिकली Industrial applicability. मॉडिफिकेशन ऑफ द मेन इन्वेंशन. कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डज नॉट हैव एनी इन्वेंटिव. सर इसमें रूल नंबर 13(1) होगा. 13(3). 13(3) सॉरी 13(3) करेक्ट. 13(3) एंड सेम फॉर्म तो ये 1 ही होना है पेटेंट ऑफ एडिशन का. रूल नंबर 13(3) करेक्ट. Validity. Mm. 57, ma'am. Amendment of Talks about amendment of application and specification or documents relating thereto before controller. So that amendment can be done by file form number. Sir, amendment form 13. Form number 13. 1(3) that is before grant. After grant दोनों भी form 13 है सर, but before grant 800 rupees, after grant 1,600 rupees. किस पर्पस के लिए? Amendment of specification. अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है. नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं. 57 is the amendment in front of controller only, not in front of court. Okay.
तो Sir, this फॉर्म is नंबर ये हो गया है। और एक क्वेश्चन है, राजीव सर बताइए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिएगा, यस सर। क्या है, अच्छा, हिंट एक और दीजिए। क्वेश्चन। हाँ, फॉर्म फॉर्म 13 जो फाइल करते हैं बेसिकली, एक और चीज है जो एड्रेस फॉर सर्विस के लिए करते हाँ, हैं। address 320 rupees before grant और फॉर्म नंबर 30 आफ्टर ग्रांट एड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए, और एडिशनल एड्रेस फॉर्म कर if you have to add additional address then that also form number Add. 30 800 rupees, and address alteration का रूल नंबर है 94(3). क्या 94(3 is for address 94(3) alteration and आफ्टर ग्रांट, आफ्टर ग्रांट। after grant, and this amendment of specification is And? amendment of specification रूल नंबर 81 में लिखा है सर। I mean उसका रूल्स 81 बहुत बढ़िया मैडम। मैम इसमें तीन चीज है बस। बहुत एक तो है कि एड्रेस ऑफ सर्विस के लिए जब हम चेंज करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्म 13 फी 320 रुपीज। अगर कुछ स्पेसिफिकेशन में कुछ अमेंडमेंट करते हैं बिफोर दी प्री ग्रांट, मतलब प्री ग्रांट अपोजिशन के केस में, तो उस समय है 800 रुपीज फी है फॉर्म 13 Okay. की। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन में के बाद, मतलब उसके बाद हम करते हैं पोस्ट ग्रांट अपोजिशन के सिनेरियो में, तो उस समय फी है 1600। ये तीन ही है इसमें क्वेश्चन में बेसिकली। और है सर क्या इसमें? सर मुझे नहीं एक सर, बात, बस यही है। स्पेसिफिकेशन दोनों जगह हो सकती है ना सर, कंट्रोलर के पास भी हो सकता है, इफ नॉट दे कैन गो टू हाई कोर्ट। ऑन ऑफ कंट्रोलर, सर मतलब ओनली अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर। अमेंडमेंट कंट्रोलर के पास ही हो सकता है, और हाई कोर्ट में भी हो सकता है। हाई कोर्ट में नहीं हो सकता। हाई कोर्ट सिर्फ ऑर्डर करेगा आपको। क्योंकि मैम बेसिकली क्या है ना, प्री और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन बिफोर द कंट्रोलर ही होता है। ओके, इट्स नॉट डील विद द हाई कोर्ट। नहीं नहीं देन सर, आता है ना, आता है ना 58 में आएगा ना, अमेंडमेंट बाय द अमेंडमेंट हाई ऑफ कोर्ट। स्पेसिफिकेशन इन ऑर्डर टू हाई, इन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट आता है। हाँ, तो हाई कोर्ट में ये डिसीजन आएगा मैडम, क्या आप अपने स्पेसिफिकेशन को अमेंड कर दीजिए। हाई कोर्ट ये डिसीजन लेगा, ओके, जो फर्स्ट मुझे एप्लीकेंट है वो सर करेगा तो सर बस कंट्रोलर के बस सामने ही। सर, बट उसमें कोई प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के अंदर चल रहा होगा, लाइक रिवोकेशन। तभी रिवोकेशन के ही किस में होगा सर, और कहीं केस में नहीं ऐसे होगा। ऐसे नहीं जा सकता ना। नहीं, ऐसे ओके, नहीं जा सकता है। रिवोकेशन केस में जाएगा, उसमें कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि तुम्हारा पेटेंट मैम तुम बस बेसिकली इफ यू कैन अमेंड ओनली द स्पेसिफिकेशन। ओके, सपोज कुछ रिवोकेशन का केस किया, अगर कुछ ऐसा कोई क्लेम ऐसा है उसके अंदर, कोर्ट कहेगी, सपोज मान लो क्लेम 1 का कुछ पार्ट है या क्लेम 2 में कुछ ऐसा पार्ट है जो उसने किसी और से कॉपी किया है, तो कोर्ट हाई कोर्ट ये ऑर्डर करेगी कि इस स्पेसिफिक पार्ट को आप रिमूव करो, एग्जैक्टली सर। अमेंड करके और हटाओ, बाकी को वो इन्फोर्स रखेगा, मतलब उसको अलाइव रखेगा। तो हाई बहुत कोर्ट बढ़िया इस सिनेरियो में वो अमेंडमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकती है। ओके, जी, सही सो बात है। बेसिकली अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो सकती है ना सर इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर, इट इज पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर ही होता है। होता है। In front ओके, of ओनली controller ही होता है। रिवोकेशन साइड में इट विल गो टू कोर्ट, दे कैन ऑर्डर फॉर मैडम स्पेसिफिकेशन अमेंडमेंट। देखिए, मैं और एक बड़ी बात बताता हूँ आपको, ये Yes. दिमाग में क्लियर रखिएगा कि 94 से पहले के जो सेक्शंस हैं, बड़े बड़े, मींस मेजोरिटी ऑफ देम, वो सारे प्रोसिक्यूशन के सेक्शन है। प्रोसेस कैसे होती है पेटेंट, वो सारी चीजें पेटेंट ऑफिस में होती है। यस सर, मेजोरिटी ऑफ देम, मेजोरिटी आप जहां पर भी एप्लीकेबल करेंगे, ये फॉर्म फाइल करने हैं, वो भी कहाँ फाइल करना है, पेटेंट ऑफिस में करना है। हाई कोर्ट में कोई फॉर्म नंबर 13 फाइल नहीं करेगा। ओके सर, यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, जब भी फॉर्म नंबर 30, 13, 1 से लेके 34 तक जो भी आए, तो वहां पर प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस रिलेटेड टू पेटेंट, एंड वहां पर सारी चीजें इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर हो रही है। ओके सर, अंडरस्टूड। 58 में जैसे आपने कहा, अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, यस और सर, कोर्ट में राजीव सर ये भी याद रखिएगा, इन केस ऑफ इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी अंडर सेक्शन 65, वहां पर भी एक प्रोविजन है कि कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि ये पार्ट को आप अमेंड कर दीजिए।
याद आई बात सर? अंडर सेक्शन 65। अंडर सेक्शन 65 तो वहां पर भी अगर कोई डिस्प्यूट हुआ और कंट्रोलर के पास अगर कोई अपील करने जाता है कोर्ट में कंट्रोलर तो के सर वो तो ऑर्डर के बेसिकली अगेंस्ट। एटॉमिक एनर्जी के केस में ही है ना। जी हाँ, सर। हाँ सर, वो तो सर करवाएगी अगर रिवोकेशन एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो। नहीं नहीं, ये मैं आपको तीन चीज बता रहा हूँ। देखिए, एक होता है 57 में अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर, दूसरा होता है अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, ये 58 में है, एंड तीसरा आता है अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट F 65 में है सर। हाँ 65 में, तो वो तीसरा एक अमेंडमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी होता है। इन दैट मैनर आई एम कोरिलेटिंग, अगर आप याद बट रख सर इन सके। फ्रंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ एटॉमिक एनर्जी इफ इन्वेंशन रिलेटिंग। एटॉमिक एनर्जी ओनली, Yeah, यस सर। सर ऑलरेडी इसकी तो बात हो गई, कोई रूल्स नहीं है सर। जी 59 59। सप्लीमेंट्री सर प्रोविजन। रिवोक हो सकता है ना सर? हाई कोर्ट हाँ रिवोक हाँ, वही 58 इज ऑल अबाउट रिवोकेशन एंड इन दैट केस कर सकते हैं फॉर्म 14। section 59 is about supplementary provisions as to amendment of specification, application and specification. सर की आवाज नहीं आ रही है ना गौरव सर? अभी तो नहीं आ रही सर की आवाज। राजीव गौरव सर। सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है सर अभी। हाँ सर। सर बोलिए सर। गौरव सर, हाँ सर, हाँ जब सर। हाई कोर्ट में रिवोकेशन का सूट स्टार्ट होगा ना, वहां से ही ये 58 का सेक्शन स्टार्ट होता है। हाई हाँ। कोर्ट में पहले रिवोकेशन का सूट हुआ। हाई कोर्ट के जज जो हैं वो ऐसा चाहते हैं कि पेटेंटी की पेटेंट रिवोक ना हो जाए, बट ये थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दे तो वो आगे बढ़ सकती है। या फिर पेटेंटी खुद कहता है कि जज साहब, मेरी एप्लीकेशन को अमेंड करके भी जिंदा रख सकते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं अमेंड कर देता हूँ। और जज साहब फेवर में है कि हाँ भाई, तू ऐसा अमेंडमेंट कर दे और फिर आगे बढ़ा अपनी पेटेंट को। तो वही बात है यहाँ पर, यानी रिवोकेशन सूट में ही ये 58 सेक्शन कनेक्ट हो पा रहा है। सर अंडरस्टूड सर? इंफ्रिंजमेंट के केस में तो सर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती नहीं, है infringement हाँ इंफ्रिंजमेंट में नहीं, ये रिवोकेशन सूट से ही होगा। और पब्लिकेशन के revocation बाद नहीं होगा। विद इन 3 मंथ तो यानी अपोजिशन कर सकता है, क्या कुछ रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया बात जो बताई मैडम, भूल गए आप, और क्या राजीव सर? सर आप भी फॉर्म भूल गए जो गौरव सर ने बताया वो। क्या फॉर्म सर? 14। सेक्शन नंबर 57 में, सेक्शन नंबर 57 में पोस्ट ग्रांट जब अमेंडमेंट होता है, हाँ पोस्ट हाँ, ग्रांट उस अमेंडमेंट, पे ऑपोजिशन आती है। तो उसका पब्लिकेशन होता है और वो करेक्ट करेक्ट। पब्लिकेशन का ओपोजिशन आता है, और यस, वो फॉर्म फॉर्म नंबर 14 14 से 2400 3 months के अंदर अपोजिशन फाइल करनी है। आप भूल गए, राजीव सर आप भूल गए, हाँ मैं सर। भी भूल गया, हम तीनों भूल गए थे, हम बिग अपनी राउंड बातों ऑफ में अप्लॉज। इतने बिजी थे, हम तीनों भूल गए थे। वहां से गौरव ने पॉइंट निकाला है। थैंक यू करेक्ट। गौरव सर। यस सर। यस एक्चुअली। पॉइंट टू बी नोटेड। 50 पॉइंट टू बी नोटेड सर। point पॉइंट to टू be बी नोटेड। point to be noted, my lord. Yes. Section 57 also has Form 14 2400 for the opposition of publication, which has to be um, filed within 3 months timeline. 2400 या फीस यही है फॉर्म 14 की। और 2400 यस 2400 विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ within 3 पब्लिकेशन months ऑफ। फाइल करनी है। देखो गौरव सर कितने थरो है अभी। 59 talks about 59 all और सर इसमें इसमें एक सर जी वो भी जी। है ना, प्रायोरिटी चेंज हो जाता है ना इफ अमेंडमेंट डन। हाँ सर, अमेंडमेंट डन हुआ तो क्लेम की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है।
यस सर, क्लेम की और प्राइस। उसी का रेफरेंस लेके हम आते हैं 111 सेक्शन में कि कब कब डैमेजेस नहीं मिलेंगे। जब तक अमेंड हो गया है क्लेम, उसके बाद डैमेजेस मिलेंगे उस क्लेम से रिलेटेड अगर इंफ्रिंजमेंट है तो। याद आई बात? यस सर। नहीं सर, और रिवाइज करके तब याद है। मैडम, अगर यहां पर क्लेम अमेंड हुआ, जो हम अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, क्लेम अगर अमेंड हुआ आफ्टर ग्रांट इन समवेयर, और उसी क्लेम की वजह से कोई इंफ्रिंजमेंट आ रहा है, तो वो जब अमेंड हुआ ना, उसके बाद के पीरियड में ही उनको डैमेजेस मिलेंगे। अमेंड होने से पहले कोई डैमेजेस नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 111। कब ओके कब डैमेजेस नहीं मिलेंगे? ओके सर। 59 टॉक्स अबाउट मैम सर ए ए बी बी सी डी सी डी ई एफ। क्या है ये? अमेंडमेंट बाय करेक्शन, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर के एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन इन एंड इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ फैक्ट। हाँ, और अगर फ्रॉड से किया गया है अमेंडमेंट, तो क्या रिवोकेशन हो सकता है? हो सकता है सर, अपोजिशन का टाइम परफेक्ट। खत्म होने के बाद भी हो सकता है। डिजाइन सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉर्म नंबर 8, 1500, रूल नंबर 29, और 5 ग्राउंड्स होती है सर। प्रायर रजिस्ट्रेशन होगा, प्रायर पब्लिकेशन होगा, अगर नॉट न्यू एंड ओरिजिनल, फिर और क्या है सर, अंडर सेक्शन नॉट 2D रजिस्ट्रेबल, नॉट डिजाइन के रजिस्ट्रेबल। एक्ट के हिसाब से नहीं है। और क्या? 2D एंड 4 को याद रख लीजिए, बस सारी चीजें आ गई। हाँ ये सर। मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन यही है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क। जी 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 जी, 2D और एंड 4 को याद रख लीजिए, सारी चीजें आ गई इसमें। यस सर। और और रूल नंबर 29 से क्वेश्चन। 29, और अपील में हाई कोर्ट जा सकती है। 29 इज ऑल अबाउट द हियरिंग, सेम थिंग सर। जिन्होंने फॉर्म नंबर 8 फाइल किया, यानी वो पिटिशनर, पिटिशनर जब फाइल करेंगे फॉर्म नंबर 8, तो उसकी नोटिस किनको भेजी जाएगी? सर एक नोटिस रजिस्टर्ड प्रोपराइटर को जाएगी सर, एक और रजिस्टर प्रोपराइटर फिर कितने दिनों में रिप्लाई करेंगे? विद इन 1 मंथ। इन वो टाइम को और एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल सकता है सर। 3 मंथ्स एक्सटेंशन कौन सा फॉर्म नंबर सर? कोई फॉर्म नंबर नहीं है वहां पर, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम की बात है, मैं दिखा देता हूँ। ओके सर। वो एफिडेविट से होता है। ओके ओके सर। कैसे आप चेक करेंगे? चेक करना चाहे तो डिजाइन में रूल्स में जाके, कौन सा रूल है सर उसमें? सर रूल नहीं है, रूल तो 29 ही है, अच्छा अच्छा। बट जो एनलार्जमेंट की 19 फीस है वो यहाँ पर लगेगी। ये रही, ऑन अ पिटिशन अंडर रूल 29, 40, 47 फॉर एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, 500 रुपीज। तो यहाँ पर पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, नॉट एफिडेविट ऑल्सो। 500 on petition under rule अंडरस्टूड? 29, 40, 47 for them. अंडरस्टूड सर। पिटीशन फाइल होगी। सेक्शन नंबर 20 में क्या बात है मैडम? पेटेंट एक्ट सेक्शन 99 टू 103 के हिसाब से ऐसे ही कुछ लिखा था सर, डिजाइन टू बाइंड गवर्नमेंट, तो वो तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैडम ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे सभी रूल ऐसे ही एप्लीकेबल होंगे जैसे रूल्स एक कॉमन पर्सन पे होते हैं, ओके सर। एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 99 टू 103 में जो प्रिविलेज दी गई है पेटेंट एक्ट में, वही ओके प्रिविलेज डिजाइन एक्ट में भी है। ओके सर। बस हो गया। राजीव सर, करें रिवीजन। यस सर, बिल्कुल सर। 54 टॉक्स अबाउट, पेटेंट ऑफ एडिशन, ओके सर, फॉर्म फॉर्म 1,
फीस with 50% deduction 800 sir. 850% डिडक्शन। क्या पेटेंट ऑफ एडिशन कब फाइल हो सकती है, पहले तो ये क्वेश्चन है। Before before the grant of नहीं loan सर, sir. ऐसे बोलना No, है before आफ्टर ऑन और आफ्टर फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। oh sorry, on or after filing the main application ना? जी सर। एंड ग्रांट कब मिलेगी पेटेंट ऑफ एडिशन को? POA ग्रांट होगा वो मेन पेटेंट के ग्रांट होने के बाद। बहुत बढ़िया सर। एंड कोई बाकी तो टाइमलाइन का चलिए 55 में आते हैं सर। 55 टॉक्स अबाउट टर्म्स ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन। जी, अगर मेन पेटेंट जिंदा है तो क्या पेटेंट ऑफ एडिशन की रिन्यूअल फीस लगेगी? नो सर, नो रिन्यूअल फी। मेन पेटेंट जब रिवोक हो जाएगी तो क्या हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह ट्रीट किया यस जाए? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा टू कंसीडर द POA एज अ एंड कितनी फीस है? 2400। फॉर्म नंबर कौन सा है? फीस कितनी? फॉर्म 30 ओके सर। 2400 फी है सर। अगर सर हाँ, बस यहाँ पर जो मेन क्लोज है वो यही है। 56 में आते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ वैलिडिटी एडिशन। को क्या नोवेल्टी से चेक किया जाएगा? नहीं सर। यस सर, नोवेल्टी से चेक किया सर यस जाएगा। नोवेल्टी पे चेक किया जाएगा, इन्वेंटिव स्टेप का कोई इन्वेंटिव ग्राउंड नहीं से होगा। नहीं किया जाएगा। जी सर। बिल्कुल। 57 सर टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नेम ऑफ एंड एड्रेस एप्लीकेशन में करेक्ट करने के लिए नेम एंड एड्रेस के लिए सर फॉर्म 13 फी 320 रुपीज। ओके सर। अगर स्पेसिफिकेशन बिफोर अमेंडमेंट करने हैं तो स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट करना है बिफोर ग्रांट। सर फॉर्म 13 ही जाएगा 800 रुपीज। ओके, एंड आफ्टर ग्रांट? आफ्टर ग्रांट सर 1600 फी। बहुत बढ़िया सर। एंड आफ्टर ग्रांट अगर नेम एंड एड्रेस करेक्ट करने हैं तो? आफ्टर ग्रांट नेम एंड एड्रेस करेक्ट करना होगा सर फॉर्म 13 ही जाना चाहिए। बट 30 उसकी फीचर 30 जाएगा। आफ्टर ग्रांट फॉर्म नंबर 30 जाएगा। एंड आफ्टर ग्रांट एडिशनल एड्रेस भी ऐड करना है तो फॉर्म नंबर 30 जाएगा। नेम एंड एड्रेस करेक्ट करने के लिए आफ्टर ग्रांट 320 रुपीज एंड एडिशनल एड्रेस के लिए 800 रुपीज। 800 रुपीज यस सर। और एक सर वो पॉइंट है जो गौरव सर ने बोला था कि पोस्ट ग्रांट के बाद पेटेंट ग्रांट होगा, उसके बाद कुछ 3 अमेंडमेंट महीने हुआ तो उसके उसकी पब्लिकेशन से 3 महीने के अंदर ऑपोजिशन फाइल हो सकता है फॉर्म 14 पे, जिसकी फी 2400 है। रूल नंबर और यहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल है? 14 का रूल पेटेंट ऑफ अमेंडमेंट के लिए रूल नंबर है 81, 82 एंड 83। 81 सर 81। तो यहाँ पर 81 आएगा। 58 सर। सर और सर 94 एड्रेस के लिए आएगा। एड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए 94। हाँ, 94 एड्रेस 94 ऑल्टरेशन के लिए एड्रेस आएगा ऑल्ट्रेशन के लिए आफ्टर द पेटेंट ग्रांट। आफ्टर ग्रांट। हाँ जी सर। 58 सर। 58 talks about Rajiv sir. सर अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन बिफोर हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट चाहे तो कंट्रोलर को बुला सकते हैं प्रोसीडिंग्स में? कंट्रोलर कैन अपीयर इन हियरिंग। क्या कैंडिडेट रिक्वेस्ट कर सकता है कंट्रोलर को कि मेरी हियरिंग में आइए? नहीं सर, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे जाएगी कंट्रोलर। हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे तो कंपलसरी आना पड़ेगा कंट्रोलर को, मगर एप्लीकेंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर ऐसे ऐसे मेरा केस चल रहा है, आप हाई कोर्ट में आइए। करेक्ट, अमेंडमेंट के लिए। और ये स्पेसिफिकली रिवोकेशन से ही केस स्टार्ट होगा, वो तो हमने बात कर ली है। 59 टॉक्स अबाउट सप्लीमेंट्री प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन है सर। इसमें है सर A B C D C D E F
amendment by way of correction, disclaimer, explanation, and incorporation of actual fact. And in case of fraud, can revocation happen? Yes, sir. Yes, sir, हो सकता है, sir. Section 19 talks about the design. Design, sir. Design का section 19 Cancellation, yes, sir. Cancellation क्या of कहता है? registration. Sir, Cancellation of इसमें registration. any person interested हम्म, can file cancellation for design registration. जिसमें सर हम्म, 5 ग्राउंड है. फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 8 सर. बताइए. P 1500. Any rule और associated with it? रूल 29 सर. अब बताइए 5 ग्राउंड के बारे में. 5 ग्राउंड सर, प्रीवियसली रजिस्टर्ड इन इंडिया और एनी अदर, पब्लिश्ड इन इंडिया, नॉट न्यू और ओरिजिनल, not registrable, or last one is not defined under section 2D, mere mechanical, principle of construction, copyright, trademarks. यहाँ पर भी पिटिशनर ने जब फॉर्म नंबर 8 फाइल किया Sir, तो उसकी नोटिस की. यस मैडम. sir 2D does it come for this principle of construction? नहीं, डिजाइन के मुताबिक नहीं है, वो आएगा. Like shape, configuration, all those. ऑल दोस थिंग्स, फीचर्स प्लस एक्सक्लूजन, 2D Okay. दोनों डिफाइन करते हैं. Okay, okay, sir. Okay, sir. 2D में वो भी आता है. Okay. एंड सर पिटिशनर ने जब पिटीशन फाइल की तो उसकी नोटिस किसको जाएगी? सर एप्लीकेंट को जाएगी जिसने फाइल किया, और जो प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटर ऑफ डिजाइन होगा उसको जाएगा. परफेक्ट. एंड सेकंड थिंग दैट और सर उसको इज 1 मंथ में रिप्लाई करना होगा, बहुत बढ़िया. और एक्सटेंडेड है अप टू 3 मंथ्स, जो आपने बताया 500 फी के साथ. एग्रीगेशन एनलार्जमेंट ऑफ टाइम. हाँ सर. Enlargement of time. फिर कंट्रोलर जब हियरिंग डिफाइन करेंगे तो कितने दिन पहले नोटिफाई करेंगे? 10 days. एंड अगर कोई नया एविडेंस वहां पर रखना है पब्लिकेशन का तो कितने दिन पहले रखना होगा? नया एविडेंस सर देना है तो एटलीस्ट 5 days बिफोर द हियरिंग. जी. सेक्शन 20 क्या कहता है? सेक्शन 20 सर ये कहता है कि अगर जितने भी एक्ट है, गवर्नमेंट जो एक्ट लागू करती है, सेम इज एप्लीकेबल फॉर द पर्सन, और एक्सेप्ट पेटेंट एक्ट का सेक्शन जो 99 to 103. बस बढ़िया सर. गौरव सर स्टार्ट करें. हाँ सर. सेक्शन नंबर 54 टॉक्स अबाउट. सर इसको हटाया हाँ, इसलिए कि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट का ही वो है ना, 99 to 103 एक्सेप्शन में. मगर बाकी दो पेटेंट लागू एक्ट में जिस तरीके से लागू होते हैं वैसे ही डिजाइन एक्ट में लागू होंगे. बिल्कुल सर. गौरव सर सेक्शन नंबर 54 टॉक्स अबाउट पेटेंट ऑफ एडिशन. फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 1 page 800. ओके. टाइमलाइन पेटेंट ऑफ एडिशन कब फाइल की जा सकती है? आफ्टर, बिफोर और आफ्टर ग्रांड. नहीं सर, एनी On or टाइम after the ऑन. pen application. बिफोर आफ्टर भी ग्रांड कर सकते, बिफोर ग्रांड दोनों. हाँ सर वो बात सही है, मगर ऑन और आफ्टर फाइलिंग दी मेन एप्लीकेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर. हम आई बात समझ में सर? मेन एप्लीकेशन जब फाइल हो तब, या फिर उसके बाद में कभी भी. पेटेंट ऑफ एडिशन कब ग्रांट मिल सकती है पेटेंट ऑफ एडिशन को? सेम डे और आप
patent grant परफेक्ट सर। and 55 में टर्म ऑफ पेटेंट की बात की गई है। पेटेंट ऑफ एडिशन की टर्म कहाँ से होती है? सर मेन पेटेंट एप्लीकेशन की प्रायोरिटी से ही होती है। क्या बात है। यानी एंड अगर मेन एप्लीकेशन रिवोक हो जाए तो क्या पेटेंट ऑफ एडिशन की रिन्यूअल फीस लगेगी? हाँ सर, वो करने के बाद हो सकती है ऑन कंट्रोलर रिक्वेस्ट, जो पेटेंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मेन पेटेंट करके हो सकती है। तो पेटेंट ऑफ एडिशन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के लिए? 30 फॉर्म नंबर 30 एंड उसकी फॉर्म फीस 30 कितनी है सर? 2400। बहुत बढ़िया सर। में 56 फॉर्म 30 में अब what are the I mean claims, right sir? Claims, mainly claims कौन से है? मेन फॉर्म claim नंबर 30 में क्या है सर? फॉर्म नंबर 30 में नहीं, आपने क्या कहा अभी? आप क्या कह रहे थे, फिर से जो बताइए। क्लेम्स जो मेन क्लेम्स है वो मेंशन करने पड़ेंगे, और व्हाट आर द मेन इन्वेंशंस, जो स्टेटमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो। हाँ जी। फिर ये इंडिपेंडेंट पेटेंट की तरह वर्क करेगी। तो हमें जो कंटिन्यू है इंडिपेंडेंट पेटेंट मींस पेटेंट ऑफ एडिशन, उसे ही एक सेपरेट पेटेंट की तरह देखा जाएगा, बट उसके सारे क्लेम्स जब भी हम देखेंगे तो मेन पेटेंट के साथ ही देखने पड़ेंगे। बात सही है सर आपकी। अब 56 में क्या बात हो रही है? फिजिक्स में वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन। बहुत बढ़िया। और वैलिडिटी में फॉर्म सॉरी, क्या पेटेंट ऑफ एडिशन को इन्वेंटिव स्टेप से चेक किया जाएगा एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट ऑफ एडिशन? सर अंडर ग्राउंड इन्वेंशन स्टेप के ग्राउंड नहीं देखा जाएगा, ओनली बहुत वैलिडिटी बढ़िया। देखी जाएगी। इन्वेंटिव स्टेप इन्वॉल्व नहीं नोवेल्टी रहा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो तब नोवेल्टी क्या किया जाएगा? एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी देखी जाएगी, इन्वेंटिव स्टेप को नहीं देखा जाएगा। 57 में अमेंडमेंट किसके सामने होता है? सर 57 कंट्रोलर अगर अमेंडमेंट एप्लीकेशन में आप ऑफ सिर्फ आंसर दीजिए सर, मैं आपको सारे रिवीजन करवा देता हूँ। 57 में नेम एंड एड्रेस एप्लीकेशन में करेक्ट करवाना है तो फॉर्म नंबर बिफोर करना होगा तो फॉर्म 13 है, आफ्टर करना हो तो फॉर्म 30 है। क्या बात है सर, 326 बिफोर 320। बहुत बढ़िया सर। अगर स्पेसिफिकेशन में अमेंड करना है बिफोर ग्रांट तो रूल नंबर 21 एंड फॉर्म आई थिंक फॉर्म कौन सा है सर? 1313 30 स्पेसिफिकेशन। सर याद रखिए, स्पेसिफिकेशन की बात आए ना जब भी, तो 1313 आएगा। स्पेसिफिकेशन हाँ 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 बिफोर सर, ग्रांट अगर अमेंड करना है तो कितने रुपये? बिफोर बिफोर ओके सर, हाँ बिफोर 800 एंड आफ्टर एंड ग्रांट आफ्टर अमेंड करना है तो आफ्टर आफ्टर 600 800 1600। 1600। और आफ्टर ग्रांट अगर अमेंडमेंट हुआ तो उसका क्या होगा? पब्लिकेशन। और पब्लिकेशन से कितने पब्लिकेशन, महीने हाँ हाँ, में विदिन थ्री ऑपोजिशन आ मंथ्स सकता है? विदिन कौन थ्री कर मंथ्स सकता है? ऑपोजिशन, एनी एनी इंटरेस्टेड पर्सन। बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14 2400।
पर ओवर सर, परफेक्ट। 58 क्या बात करता है? अमेंडमेंट इन फ्रंट ऑफ अमेंडमेंट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। तो वो किस केस के अंदर आ सकती है ये बात? हाई कोर्ट में कब अमेंडमेंट की बात आ सकती है? उसके लिए कौन सा केस हो रहा होगा उस एप्लीकेशन पे, सॉरी पेटेंट पे? सॉरी सर। पेटेंट पे क्या हो रहा होगा तो अमेंडमेंट की बात आ सकती है हाई कोर्ट में? पेटेंट क्या प्रोसीडिंग हो सकता है? हम्म। What purpose we take? पर्पस क्या है कोर्ट जाने का? हम्म। कोई कोर्ट में क्यों इंफ्रिंजमेंट हुई ये हो। बातें? इन्फ्रिंजमेंट नहीं सर, इंफ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट के अलावा दूसरी बात क्या हो सकती है? रिवोकेशन हो रहा है, रिवोकेशन। रिवोकेशन हाई कोर्ट में होता है। रिवोकेशन, हाँ हाँ। हम्म। हाँ सर 59 सर, 59 में क्या बात है? सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री प्रोविजन ए बी सी डी ई सी एफ, डी ए ये बी क्या सी होता है डी सर? amendment by correction, disclaimer, explanation, तो incorporation सिंपल, of सर सिंपल ऐसे याद कर सकते हैं 59 इक्वल्स टू ABCD है। What's हाँ, you 59 इज repeat? इक्वल्स टू एबीसी। sir repeat again sir। What did you say? Sir, what did he Rajesh sir say? राजेश सर ऐसे बोल रहे हैं कि 59 को ए बी सी डी ई एफ ही कह देते हैं, जो अच्छा, लिखा है उसको याद नहीं रखते हैं। अ, सर इसमें एक स- पॉइंट याद आ रहा है सर, इसमें 57 में कि सपोज एप्लीकेशन में कोई कुछ डिस्प्यूट है यानी infringement वगैरह है, तो कंट्रोलर कैन नॉट अलाउ फॉर अमेंडमेंट एक्चुअली क्या है एप्लीकेशन में, क्या है? कुछ एप्लीकेशन सपोज कुछ मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि एप्लीकेशन में कोई चीज ऐड नहीं कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एंड स्कोप को बढ़ा नहीं सकते हैं, दैट इज करेक्ट सर। new subject स्कोप matter बढ़ा नहीं सकते हैं, स्कोप को हाँ कम हाँ कर सकते हैं, नैरो डाउन कर सकते हैं, और new subject matter को हाँ हाँ। यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस नहीं ऐड। कर सकते हैं। हम्म। हाँ नहीं और सर, वो अब कुछ आते हैं ना, इंक्रीमेंट के बारे में बोल रहे थे हाँ गौरव सर सर, कुछ। प्रिस्क्राइब मैनर में होनी चाहिए। हाँ तो क्या आप क्या कह रहे थे? मुझे तो ये समझ में आया, राजीव सर कह रहे कुछ अलग कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे आप सर? कुछ एक बार फिर से इंक्रीमेंट का कहेंगे? टर्म। सर कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड रहेगा तो कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते कंट्रोलर, यानी कंट्रोलर के पावर में ही है। तो हाँ सर हाँ वही हाँ 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 पॉइंट है हाँ। इंडायरेक्ट। yes नहीं, सही 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 सही, नहीं नहीं yes नहीं नहीं yes नहीं। correct what you हाँ, अगर अगर इंफ्रिंजमेंट का सूट चल रहा है, अगर हम्म। रिवोकेशन का सूट चल रहा है, तो उस टाइम पे हाँ कंट्रोलर ये एप्लीकेशन को, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करेंगे, approve नहीं वो कर पेंडिंग में रखेंगे टिल द टाइम सेटिंग। उसका डिसीजन ना आ जाए तक। correct हाँ correct सर बहुत बढ़िया। तो ये ये वैसे तो फिर ये- हम भूलते जा रहे हैं, आप याद करते जा रहे हैं, वही बात हो गई सर। तो बहुत अभी बहुत सर बढ़िया सर। इस बार तो सर पूरा डिले रिकॉल और आज का दिन कौन सा है? 21 दिसंबर, डेडिकेटेड टू गौरव सर। sir 2 you पॉइंट won't उन्होंने याद दिलाया। sir एक एक line remember कर रहा है, पता है कि everything. क्या बात है। See, I also forgot so many things. You made me remember. Thank you. हम्म। ये भी important सर line से ही है ना सर, अगर कोई भी बहुत हाँ it is very important line no. मैडम, ये एमसीक्यू आ गया और ये पॉइंट याद नहीं है तो गलत हो जाएगा। गलत हो सिंपल सी जाए बात है, when the इम्पोर्टेंट ही है प्रोसीडिंग 100। चल रहा है लाइक इन्फ्रिंजमेंट और रिवोकेशन, तो कंट्रोलर कैन नॉट अलाउ फॉर द अमेंडमेंट। और राजेश हाँ सर समझ गए वो बात, हम्म। बहुत बात बोल रहे हम्म। करेक्ट। राजीव सर इतना तो समझ सर गए कि कुछ 19 तो इम्पोर्टेंट है।
जो है, हाँ। बता रहे हैं, हमें सर रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ सर इंक्रीमेंट का वर्ड सुनाई दिया था मेरे को। ग्रुप क्लास की हाँ। वजह से ना सर बहुत कुछ एक्चुअली everybody tells one new point and we can remember. हाँ। Very- सही बात है जी। गौरव uh, सर, सेक्शन 19 Section ऑफ द 19, डिजाइन एक्ट। cancel of registration. The main ground पे कि प्रीवियसली रजिस्टर्ड हो और रजिस्टर्ड इंडिया में, पब्लिश ऑलरेडी इंडिया में हो चुका हो, और न्यू एंड ओरिजिनल नहीं हो, फॉर्म नंबर और सेक्शन फॉर्म नंबर 8 1500 एनी पर्सन रूल कैन नंबर फाइल एसोसिएटेड सर। 29। हम्म और सर, जो रिप्लाई देना होता है, पिटिशनर ने फॉर्म नंबर 8 फाइल किया, तो जो प्रोपराइटर होता है डिजाइन का, उससे कब तक रिप्लाई देना होता है नोटिस के बाद? तो विदिन गुरु सर सेम प्रोसीजर. विदिन 1 मंथ, और उस टाइम को और कितना बढ़ाया जा सकता है? उसमें 3 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं, और पिटिशनर सर बहुत बढ़िया सर। टू कॉपीज देंगे सर, स्टेटमेंट एंड हम्म एविडेंस, कंट्रोलर को भेजेंगे और सामने प्रोप्राइटर को जाएगी पिटिशनर, हाँ, रजिस्टर्ड और प्रोप्राइटर को. रहेगी। प्रोप्राइटर को जाएगी। हम्म, और कंट्रोलर बिफोर और 10 फिर डेज सेम केस पिटिशनर कंट्रोलर को बिफोर करनी 10 है। डेज हियरिंग की डेट देगी। बिफोर 10 days हियरिंग होगी। 10 days before hearing will be हम्म notice will be given for hearing. 5 days before evidence has to be submitted if any. हम्म। And sir एक और इसमें फॉर्म आता है ना सर, डिजायर टू बी फॉर्म हर्ड 20, का भी एक रहेगा. हाँ, हाँ फॉर्म फॉर्म 20, फॉर्म नंबर 20, फॉर्म नंबर 20 20 डिजायर टू डिजायर बी टू बी हर्ड. हर्ड, तो डिजायर टू बी उसकी हर्ड फीस 500 ₹500। 500. 500। हम्म. सपोज न्यू एविडेंस कुछ वो है हियरिंग के तो बाद बिफोर जो 5 अपनी डेज। बातें सुनाना चाहता है उसके लिए। Desire to be heard जी। form number 20 500 और rupees. एंड इंग्लिश 20, ट्रांसलेशन सेक्शन होना 20 क्या चाहिए कहता है? जी 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 सर, क्या बोल रहे थे सर, इंग्लिश गौरव ट्रांसलेशन सर? होना चाहिए, हाँ, इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेट होना चाहिए। ट्रांसलेशन होना चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन किसी और लैंग्वेज में लिखी गई है तो उसका वेरीफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन कॉपीज होनी चाहिए। देखो सर हम सब भूल गए, ये यहाँ पे भी फॉर्म 2500 रुपीज किसी ने भी नहीं बताया. हम्म डिजायर टू बी हर्ड. नहीं बताया। अब है ना, वो ग्राफ सर का यू टर्न ले रहा है पूरा, या गौरव सर का ग्राफ। हाँ, सेक्शन 20 गौरव सर। और डिजाइन टू बाइंड गवर्नमेंट, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, बट एक्सेप्ट सेक्शन नंबर, कौन कौन से सेक्शन नंबर को एक्सेप्ट करते हुए? पेटेंट एक्ट के 99 से लेके 103। इसका सर सिंपल सा मतलब है, जैसे 99 टू 103 एप्लीकेबल है पेटेंट में, वैसे ही वो एप्लीकेबल है डिजाइन में। सेम मैनर, कोई अलग बात नहीं है। क्लियर है जी? अब बताइए, इसके अलावा और हम, ये रिवीजन तो हो ही रहे हैं हमारे, अच्छी तरीके से हो रहे हैं, और बहुत जल्दी ही हम पेटेंट एक्ट को अब कंप्लीशन की वर्ज पे हैं। शायद कल गौरव सर का एंड शीतल मैडम का कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली राजीव सर का भी कंप्लीट हो जाएगा कल ही पेटेंट एक्ट। और फिर 2 दिनों में, 21st के बाद 22nd एंड 23rd एंड 24th तक मुझे लगता है कि डिजाइन एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजाइन एक्ट जैसे ही कंप्लीट होता है, हम वापस एक एग्जामिनेशन रखेंगे 25th ऑफ डिसम्बर,
क्रिसमस के दिन। एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 ड्राफ्ट करने रहेंगे। आई थिंक ओके। मैडम के घर पे बच्चे रहेंगे, वहां पर आप, फिर वहां पर छुट्टी मिलने वाली है ना मैडम आपको, बच्चों को 25 से 1 वीक के लिए। और सर के पास, राजीव सर आप कर पाएंगे 25 को, या फिर आप संडे को ही करेंगे? सर 25 में हॉलीडे है। आपके कंपनी में भी हॉलीडे है? ये बढ़िया यस बात है। सर। तो सर 25 को हम यूटिलाइज करेंगे पेपर लिखने के लिए। ठीक है सर। एंड 26 ऑनवर्ड्स सारे इवेल्युएशंस एंड फिर जो बचे हुए इवेल्युएशंस है पहले वाले, वो भी हम टैकल करते जाएंगे डेली बेसिस पे। करेक्ट। तो 26 से हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम ऐसे ही रात को इकट्ठा होंगे, बट हमारा तब फोकस रहेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर इवेल्युएशन पे बात करें। जो भी चीजें अगर रह जाती है 25 को कवर नहीं हो पाती है, तो हमें वो चीज कवर पहले करनी है। इसका मतलब है पेपर पहले देना है और फिर इवेल्युएशन करके रिवीजन अब हम करेंगे जितना बाकी है उस सेक्शंस का डेली बेसिस पे। करेक्ट। तो आज हम पहुंचे हैं 7वें दिन पे, फिर आएगा 8वां, 9वां, 10वां, लाइकवाइज। हमारा रिवीजन जो है वो कंप्लीट होगा। आज हम 7वें दिन पे हैं, 8th डे हुआ है आज हमारा। 21st डे यहाँ से आएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 15 दिन के बाद, तो एग्जैक्टली 5th of January को हमारे सारे रिविजन्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ओके सर। ओके जी। तो इसके अलावा अगर कोई बात है तो बताइए। हाँ, थोड़े से पीसीटीज एंड केस स्टडीज हैं, जो केस स्टडीज में जो जनरल कंक्लूजन्स हैं, जो केस स्टडीज ऐसी है कि जिनको हमें पढ़ना चाहिए, वैसी केस स्टडी का भी मटेरियल मैं आपके साथ में बाद में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कंप्लीट कोर्स मींस पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नीपाम सीपाम करके कुछ पॉलिसीज हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड पीसीटी एप्लीकेशन की कुछ 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 बारीकियां हैं जो हमें जाननी चाहिए, वो राजीव सर भी हमें कंफर्म करेंगे, मदद करेंगे, और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो चीजें एडिशनल है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 85% ऑफ सिलेबस जो आता है पेटेंट एक्ट में से एंड डिजाइन एक्ट में से, जिसको हमने डबल वेरीफाइड किया है, हम डबल प्योरीफाइड कर रहे हैं उसे। एंड बाद में हम आएंगे एक एक बार देखने वाली बातों में, जिसको एक वन टाइम देख लिया, थोड़ा सा रिमेम्बर कर लिया, याद हुआ तो ठीक है, वरना एग्जामिनेशन में उसके 2-3 मार्क्स से ज्यादा कोई उसका वेटेज नहीं होता है। करेक्ट। बट याद हो ही जाएगा, इतना सब कुछ याद रखा है तो फिर वो याद करने में मजा आता है। जब हमारे पास कुछ चीजें याद नहीं है तो फिर डिफिकल्ट होती है चीजें। क्यों मैं गौरव सर, सही है ना? 27, 28, 29 ट्रैवल कर रही हूँ 3 दिन। 27, 28, 29 आप ट्रैवल कर रहे हैं, 3 लेकिन दिन इन ट्रैवल। बिटवीन 1 आवर तो मैं स्पेंड कर सकती हूँ सर, पढ़ाई के लिए 1-2 आवर्स। तो आप जा रहे हैं तन्मय जी एंड गौरव जी को लेके कहीं पर घूमने के लिए? गौरव तन्मय तो जा रहे हैं मेरे मम्मी के यहाँ, मैं जा रही हूँ अरे राजस्थान। सर चलिए गौरव तन्मय अच्छा, आपकी 1 तारीख मतलब 27 को जाएंगे, जो 1 तारीख रात को ही आएंगे सर। बहुत। तो वहां पर हम रिवीजन के क्लास को टारगेट करेंगे, आप वही रिवीजन कहिएगा। 27, 28, 29 रिवीजन कर पाऊंगी, बस ज्यादा वही कर पाऊंगी सर, एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाऊंगी उधर। बहुत कर लिया मैडम, 3-4 दिन की तो छुट्टी बनती 3 डेज है सर। आपके लिए। वो अब एक मन जी गुरुदेव के कितने दिनों से दर्शन। आप ये 15-17 दिनों से आप कांस्टेंट इसके पीछे लगे हुए हैं और अच्छी प्रिपरेशन की है, नो डाउट अबाउट इट। परफेक्ट। गौरव सर, पेपर्स लिखना हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सर। 25 अगर हमारा पेपर भी होगा तो हमारा उस दिन का जो टारगेट है हम पढ़ लेंगे सर, वो तो पढ़ना ही है, क्योंकि वो तो उसकी वजह करना ही। से मैं और गौरव से सरवाइव कर रहे हैं अभी। हाँ मैडम देखिए, 5th of January को तभी ये कंप्लीट होगा अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो। और मैंने 5th से लेके 11th यानी 10th तारीख तक का ये एक बफिंग पीरियड रखता है, हम कहते हैं ना इसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है।
तो अगर नहीं हुआ वहां पर तो हम फिर उसको एक्सटेंड करते जाएंगे लाइन को, 6th 7th 8th इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अगर कोई एक दिन भी मिस हुआ ना तो हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा है, 5 नहीं बट 4 दिन एक्स्ट्रा है टू बी प्रिसाइज। 10 तारीख को तो आप निकल ही जाएंगे अपने अपने प्रिसाइज लोकेशन पे। 11 तारीख को है ना एग्जाम? यस सर, 11 तारीख को। हाँ, Yes, तो sir, 10 तारीख को तो आप निकल ही जाएंगे। और सारी चीजें परफेक्ट रही तो 5 तारीख को हम कंक्लूड करेंगे। फिर एक फ्री स्पेस होगा जहां पर आप कोई भी क्वेश्चंस एंटर कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक Yes, फ्री स्पेस होगा बाद में। yes ओके, sir. तो बस ये प्लान के साथ ये प्लान क्यों बताता हूं मैं, क्योंकि एक विजन रहता है कि हमें ये चीज क्यों करनी है, एक सीरियसनेस आती है। विजन कब होता है? जब एक स्केड्यूल बना हुआ हो कि भाई हम ये प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं तो वी कांट स्किप समथिंग। अभी हम अपनी प्रोसेस को कम नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं जरूर से, बट जिस पेस से हम चल रहे हैं उसको पीछे नहीं कर सकते हैं। Yes sir. तो हमें थकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इट्स अ टाइम टू वेक अप। We are doing our best. जी कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बट फिर भी ये अवेकन जो फिलोसॉफी हो तभी साइकोलॉजी बनती है जब हमारे पास कोई स्केड्यूल हो, हम विजन देख पाए। ओके, ये 5th को ये खत्म होगा, अगर हमने इस तरीके से आगे बढ़े तो ये 5th को खत्म होगा, वरना नहीं होगा। इन बिटवीन हमारी एग्जामिनेशन कब आएगी? यहाँ पर आएगी। कब तक हम पेटेंट एक्ट कंप्लीट करेंगे? यहाँ पर करेंगे। कब तक हम डिजाइन एक्ट कंप्लीट करेंगे? यहाँ पर करेंगे। वो सारी चीजें साथ में चलती है कि एक भी दिन अगर मिस हुआ तो वो डेडलाइन आगे शिफ्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास वेकेशंस नहीं है, जैसे राजीव सर को फिर 25th के बाद कब कंपनी से छुट्टी मिलेगी, पॉइंट है ना, फिर नहीं मिलती है उनको। 1 तारीख को है सर, तो वो 1 जनवरी जी को सर, है बस। 1 जनवरी को है। तो हाँ, तो फिर फर्स्ट 1 जनवरी जनवरी को को सर। एक फर्स्ट जन को कौन सा डे है? फर्स्ट जन को मैं भी फ्री रहूंगी, 1 मेरे जनवरी बच्चे भी नहीं रहेंगे इधर। थर्सडे सर, थर्सडे। तो फिर थर्सडे। थर्सडे है, तो थर्सडे को एक और एग्जाम रखें। तो यहाँ पर हमें अप्रूवल चाहिए गौरव सर का। सर 1 जन को एक और एग्जाम रखें। जी जी सर। हाँ, तो 1 जन को एक और एग्जामिनेशन, और वो एग्जामिनेशन रहेगी 2025 का पेपर, और वो एग्जामिनेशन रहेगी 2025 का पेपर। हाँ, Yes. अभी तक हमने रोल जो पेपर पेपर दिए में वो सर, नहीं। रोल पेपर। जी सर, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ ऑफ 2025 पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन, ताकि हमें पता चले कि हमें और कौन कौन सी डायरेक्शन को पैचअप करना है। और घबराना नहीं है। अगर कुछ जी भी जी हो सर। जाए, आपके मार्क्स कम आए या फिर आपको ऐसा लगे कि ये चीज पता नहीं है, तो हमें घबराने की जगह पर उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि उसको हम कैसे कवर कर लें। बस Yes. यही थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़िएगा, हो जाएगा, सारी चीजें रोज हो कर रहे जाएगी। हैं ना, हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कर ही रहे, वेस्ट तो नहीं कर रहा, हो जाएगा। बस एग्जाम देंगे ना मैडम, फिर ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, मैंने तो अभी कम प्रिपरेशन की, या अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये होगा, फीलिंग आएगी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि प्रिपरेशन करने के टाइम पे हमने पढ़ लिया तो हमें सब कुछ आना चाहिए, मगर एग्जामिनेशन उस चीज को ठुकराती है। यही साइकोलॉजी होती है एग्जाम की। एग्जामिनेशन उस चीज को रिटार्ड करती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आ गया। एग्जामिनर का भी तो एक्सपर्टिज्म है, तो वो भी अपने क्वेश्चंस निकालेंगे। सो ऑफ ये कोर्स सर, वो चीजें लोग चलती रहेगी। इन्वेंशन का ही डर लगता है सर, इन्वेंशन कैसे आएगा। बस इतना याद रखना है कि हमें 70% मार्क्स से पास होना है। कितने परसेंटेज से? 70% एंड ऑनवर्ड्स। हमें 100% की प्रिपरेशन करनी है, बट हमारे मार्क्स कितने आएंगे? 70% ऑनवर्ड्स। ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बस तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। बहुत बातें हो गई, मिलते हैं कल वापस सुबह 6 बजे। सर राजीव सर, 6 या सवा Yes, 6? सर 6:30 रख कितने लीजिए, बजे? 6:30 से 6:30। 7:30। 6:30 से 7:30, 6:30 बजे राजीव सर के साथ, 6:30 से 7:30 उनके साथ, फिर 8 बजे मेरा नाश्ता, और 8:30 to 9:30 शीतल मैडम एंड गौरव सर के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे। जय हिंद। गुड जय हिंद नाइट। सर। गुड नाइट।